Okay, so we have 4 commands to look at. So first of all, we'll start from PS. Okay, so PS command is like a task manager. So, so if we execute the PS command in that Unix terminal, we'll get the process list along with some extra details of the process. So इसको मैंने जावा में किया है, बाकी सब जावा में नहीं हो सकता. एंड हाँ, सो फिर से करो, ये सबको समझा क्या? हाँ समझा कर आगे कर. फाइन. सो इसको मैंने जावा में किया है, बाकी सब सी में. So first of all, I'll execute the ps command somewhere. So basically what ps does is okay, wait, ps e. So this command gives a whole list of processes, okay, जो तेरे पे run हो रहा है with process id and tty and whatever. So what this does is, Java में there's a अटक गया. Okay, so first of all we access the Java runtime object. Okay. Okay, so first of all, so runtime को access किया, उसके बाद there's a function get runtime, and then we append an exec function to it. And in exec function, you exactly type what you want to type on a terminal. So ये क्या करता है exec? It copies the entire string and has it run on a terminal. like terminal में जाके उसको execute करवाता है. For this, अभी ये किधर तो output देगा, right? This only does the function of executing something. ये output लेता नहीं है by default. So we first of all declare 2 buffered readers, one for input and one for error. Okay, it's going to be a buffered reader object और उसका input stream reader object, and then we access उसका get input stream. उसके object से we access it in input stream and error stream. ठीक है? And then so this is like input stream जो उसका प्रोग्राम का आउटपुट आने वाला है if the process runs. Okay, so अगर ये not null है, it's a normal checking. अगर ये null नहीं होगा तो it's gonna print the output, और अगर कुछ error आया तो it's gonna print that. Yeah. Okay. And this is just an exception because it doesn't work correctly if we don't catch exceptions for some reason. नाटक करता है. Yeah. Okay, so ये हो गया PS का. I'll run both of them together. इसमें मैंने दो किया है. I have used join as well here. So we join function. What join function does is, it takes 2 files. उसका by default first column check करता है. If the first column matches, it appends everything except the first column और उसका output में दिखाता है. I'll show how. So first of all, let's see. मैं इधर नीचे टर्मिनल में डालता हूँ. Can you guys see the terminal? Yes. Hello. Yeah, we can see the terminal. Good. Okay. So join, and then the 2 file 1.txt, and wait. I'll first show file में क्या है. Show the file, yeah. Yeah. File 1.txt. So इसमें first row मेरी 1 2 3 पर है, और उसमें मैंने second row में मैंने animals के नाम डाल दिए random. I'll show the second file. उसमें मैंने सिर्फ ABCD लिखा है, but notice both of एक्चुअली मान के सुनना, तू वो cat file 1 से explain करेगा क्या? मेरा actually net चला गया था. I'm so sorry. ठीक है. I'm just showing the contents. Cat is like content दिखाता है किसी फाइल के अंदर के. It's a normal function. ये यूज नहीं करना है. I'm just showing फाइल के अंदर क्या है. ठीक है. So file 1.txt में there's first column, उसमें numbers है, second column में नाम है, और दूसरा भी समझ गया. सेम है, पर the main thing is उसका first column same होना चाहिए. सेम है और by दूसरे default अलग है. if you want to change it, उसमें अलग options है, but we're gonna do default only अभी के लिए. So for now we're gonna execute. No, I'll just use the join function separately, program को छोड़ के. So join file 1.txt, file 2.txt. So it returns join करके. So one cat A or two dog B, easy, बहुत चक्री है. अरे वाह. So exactly ऊपर मैंने जैसे किया था ना, PSU in famous run करके. Basically DBMS का join क्या? DBMS का join है, exact वही है. Yeah, okay. So basically मैं इधर I'm taking the arguments इधर file 1 और file 2, and then same ऊपर का जो भी है ना, process join equal to runtime dot get runtime dot exec, इधर तक सब सेम है. अंदर से मैं जो कमांड में टर्मिनल पे डालूंगा नॉर्मली, मैं इधर डाल रहा हूँ. Then use buffered readers to get output and error. Okay, and then print if there is an output, print if there's an error, print. और वो catch कर रहा है exception as normal.
अब मैं सिर्फ void main से उनको कॉल कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट से, so I'll just run this. So okay, क्या हुआ इसको? array out of bounds. Okay, हाँ मैंने उसको arguments नहीं दिए थे. So Java system call file1.txt file2.txt. Okay. So first मेरा first object call ps कर रहा है. So ps command I'm executing. So ps process के list देता है. u tag में उस यूज़र की इन्फॉर्मेशन देता है. सो इफ अ प्रोसेस इज रनिंग बाय द यूज़र नेम, सो माय यूज़र नेम इज़ दिस ऑन दिस कंप्यूटर. सो अगर इस यूज़र नेम के अंडर जो भी प्रोसेस काम कर रहे हैं उनको वो रिटर्न करेगा. सो दिस इज द लिस्ट ऑफ ऑल द प्रोसेस रनिंग अंडर माय नेम, यूज़र नेम. एंड सेकंड इज आउटपुट जॉइन फाइल का. इट्स प्रीटी सिंपल. समझ रहा है? किसको डाउट है? Yeah, really explain. समझ रहा. It's chill, मतलब कुछ ही नहीं है ही नहीं उसमें. ओके, सो इधर दो हो गया, ps हो गया और इधर join हो गया. So The other two process are IDs can be done by Java क्या? क्या? The process ID one can be done with Java क्या? The CID PID. No, wait.c. नहीं, ये नहीं होता जावा से. अगर करना है तो बहुत बहुत नाटक लगता है. It's best done on C. तो किधर भी नेट पे जाएगा ना तेरे को सब बोलेंगे C पे कर. There's no programs to like Java पे किए हुए. नहीं Java पे होना चाहिए, ऐसे नहीं चलता है. Money can f off. हाँ, okay. So हम wait देखेंगे. Wait is a system call which waits for a child process to emerge. Wait, मैं पहले fork करता हूँ, so you understand what it is. Okay. So fork is a type of a system call again, जो इसमें find होता है unistd.h में. So void main में you can notice I've called the fork function, and then मैंने add function को call किया है. I'll just remove fork function for now. Wait, what? हाँ ठीक है. I'll just run fork.c for now. Okay. Oh wait. इसको भी निकाल देता. ओके, सो इसका नॉर्मली रिजल्ट मैं सिर्फ ऐड कर रहा 2 नंबर्स को. इंट ऐड डिक्लेयर किया, 5 + 2 इज गोना रिटर्न 7. प्रीटी नॉर्मल. अभी व्हाट आई विल डू इज दिस रिमूव वन फोक. बिफोर क्या करता है, इट काइंड ऑफ स्प्लिट्स द करंट प्रोसेस. सो अभी करंट प्रोसेस क्या चल रही है, सो इट्स इन वॉइड मेन, द प्रोसेस कंट्रोल इज इन वॉइड मेन. अभी वो ऐड की तरफ जाने वाला है. सो व्हाट इट डज इज वो एक और प्रोसेस कॉपी करता है, एग्जैक्ट प्रोसेस उसकी कॉपी करता है पहले वाले की, एंड देन इट रन साइमल्टेनियसली, टाइप ऑफ मल्टी थ्रेडिंग साथ में. सो व्हाट दिस इज गोना डू इज ये ऐड प्रोसेस जो है उसका कॉपी बनाएगा और एक. बेसिकली इफ आई कंपाइल इट अगेन, वेट, सेव किया मैंने? नहीं. ओके, सो 2 बार मुझे 7 आया. सो फर्स्ट जो 7 है वो ओरिजिनल पेरेंट प्रोसेस है, और दूसरा जो 7 का आंसर है, दूसरा जो ऐड बार हुआ है उसको चाइल्ड प्रोसेस कहते हैं. बट व्हाट इफ देयर आर 2 फोक्स? ओके, सो मैं ऐड के अंदर और एक फोक डाल दूंगा. आई विल कंपाइल दिस अगेन. अभी 4 बार आया बिकॉज आई विल शो सम ड्राइंग. रुको, वेट, शॉर्टकट ड्रॉ. ओह यस, ड्रैगन सेव हो गया. ओके, ये जो ब्लैक डॉट है ना, दैट इज द मेन प्रोसेस जो अभी चल रही है, जो वॉइड मेन में है. सो व्हेन इट फर्स्ट एनकाउंटर्स फोर्क इधर इस टाइम को, देन इट काइंड ऑफ स्प्लिट्स इनटू 2 प्रोसेसेस. द ब्लू वन इज द पेरेंट प्रोसेस और पर्पल जो है वो उसके चाइल्ड, विच इज द एग्जैक्ट कॉपी. अभी मैंने फोक अंदर ऐड के फंक्शन के भी अंदर डाला है, राइट. सो इट्स गोना अगेन एनकाउंटर वन मोर फोक. सो अगेन उसको स्प्लिट करेगा. सो जो पेरेंट प्रोसेस है उसको फिर से पेरेंट और चाइल्ड में स्प्लिट करेगा, और जो चाइल्ड है उसको फिर से पेरेंट और चाइल्ड में स्प्लिट करेगा. सो द बेसिक फॉर्मूला हियर इज लाइक जितने फोर्क है ना अंदर पकड़ो. सो इफ देयर इज 1 2 to the power इक्वल टू 1, इधर n इक्वल टू 2 हो गया. सो इट्स बेसिकली 2 to the power of n.
जितने 4 के उतने प्रोसेस होंगे, उतने 2 to the power of n प्रोसेस होंगे। राइट। वही है, इतना इतना कुछ नहीं, जस्ट स्प्लिट्स इनटू। और इसमें पेरेंट और चाइल्ड टास्क जो है वो सेम ही टास्क कर रहे हैं ना? एग्जैक्ट सेम, और रिसोर्स भी सेम से यूज कर रहे हैं, मतलब अगर same हम thread use कर रहे अगर हमें उन्हें अलग करना पड़ता तो हम लाइक उसके लिए क्या करते हैं? नहीं करते हो ना, क्यों? हैं। नहीं करते उनको अलग, फोर्क का काम ही वही रहता है। अच्छा। फोर्क इज लाइक डुप्लीकेट करेगा, एंड देन इफ यू वांट यू कैन एंड करंट प्रोसेस और चाइल्ड को चालू रख सकता है। दैट्स द Sort of like GitHub. Okay. गिटहब का ही फोर्क है, उससे डेवलप है। ओके, सो अभी वेट में जाते हैं। अच्छा ठीक है, सो सिस वेट में वेट फंक्शन रहता है, एंड देन UNISTD में PID_T रहता है। सो PID_T इज अ यूजर डिफाइंड टाइप ऑफ वेरिएबल। ठीक है, सो उसका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसका कोई भी ऑब्जेक्ट दो, इट्स फाइन। सो अभी वी कैन डू ए फोर्क इक्वल्स टू 0। अगर इस प्रोसेस को फोर्क किया नहीं है, देन वी कैन एग्जिट फ्रॉम द फंक्शन। अगर फोर्क किया है तो वी कैन वेट फॉर द चाइल्ड टू इमर्ज, एंड देन दोनों के PID में प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, आई मीन एग्जीक्यूट, उसको कुछ लॉजिक ही नहीं है समझने को, होता ही रहता है। और स्लैश वेट, सो पेरेंट और चाइल्ड का देख सकते हैं, इट्स लाइक एडजेसेंट टू ईच अदर, दो प्रोसेस एक साथ स्टार्ट होता है। Yeah. बिकॉज मैंने ये किया है, इट काइंड ऑफ फोर्क्स इसके आगे का जो भी है। इसमें कुछ है ही नहीं, इट्स लाइक वेट फंक्शन क्या करता है, इफ गिवन PID के बाद जो भी कुछ चालू हो रहा है ना, उसके लिए वेट करता है, बस भाई कुछ नहीं करता। ओके, अभी एग्जैक्ट फैमिली, ये थोड़ा दिमाग में जाएगी फॉर श्योर। ओके, लेट्स स्टार्ट विद बेसिक। ओके, exec l नाम का फंक्शन। तो exec हमारा हुआ है जावा में, इट्स लाइक exec करो, अंदर कुछ भी डालो, इट्स गोना एग्जीक्यूट। अभी exec l में व्हाट इट डज इज यू हैव टू, अभी उसके हर एक exec l, exec p, exec lp, देन exec v, exec vp, इस टाइम की फैमिली रहती है। l में क्या रहता है, यू डिक्लेयर आर्ग्यूमेंट्स उसके अलग अलग से पॉइंटर्स। अभी आई वांट टू रन PS जैसे मैंने पहले किया था, सो आई हैव टू गिव द कंप्लीट पाथ जहाँ मेरा PS है। ओके, देन आई हैव टू गिव आर्ग्यूमेंट्स सेपरेटली, जो मैंने पहले दिए थे उसमें सेपरेटली मुझे आर्ग्यूमेंट देना है। देन कॉल द exec l फंक्शन, देन आई हैव टू गिव द पाथ ट्वाइस, उसका वही सिंटैक्स ही वही है, आई हैव टू गिव पाथ ट्वाइस, देन द आर्ग्यूमेंट, आई कैन गिव आर्ग्यूमेंट 2 here as well, आर्ग्यूमेंट 2, एंड देन एंड इट विद अ null। ये रटना ही पड़ेगा आई गेस। सो exec l में फर्स्ट ऑफ ऑल यू गिव द पाथ ट्वाइस, देन द आर्गुमेंट, जितने भी आर्गुमेंट्स है 1 2 नहीं, जितने भी है, एंड देन एंडेड विद अ null। दिस इज द बेसिक सिंटैक्स ऑफ exec l। अभी ये Actually- मैंने डिबगिंग के लिए रखा है, दिस exit printer, you will see q dot slash exec l। ओके, सो अभी इधर नीचे यू कांट सी द exit फंक्शन, इसके नीचे। सो व्हाट exec l डज इज, अभी मैंने कोई किधर भी exec l को कॉल किया, वो उस प्रोसेस को, सो अभी द करंट प्रोसेस गोइंग ऑन, उसका PID समझ 2000 है। मैंने जब exec l कॉल किया, द प्रोसेस टू PID 2000 गेट्स कम्प्लीटली रिप्लेस, जो मैं इसके अंदर उसको बोल रहा हूँ करने के लिए। और इसके बाद जो भी लिखा है सब ओमिट होता है, एवरी स्टेटमेंट इज ओमिटेड इसके बाद। Okay. सो वही है, उसका काम ही वही है। नाउ exec lp, इसके इधर p क्यों डाला है, बिकॉज इट डजंट टेक द फुल पाथ। अभी चेक इन exec l, इधर मैंने bin डाला है, सो इसका फुल पाथ है, एब्सोल्यूट पाथ, उधर मुझे डालना नहीं पड़ता, बिकॉज इट टेक्स द एनवायरनमेंट, पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल जो लिनक्स में रहता है। यू कैन चेक द पाथ एनवायरनमेंट बाय echo path, echo $path, इज गोना शो तेरे पाथ में क्या क्या है। सो ये उसको ये इनहेरिट करता है exec lp, यू डोंट हैव टू गिव द कंप्लीट पाथ, देन एग्जैक्टली सेम काम करता है, इट एग्जीक्यूट्स और उसके बाद के सब स्टेटमेंट ओमिट करता है, एंड देन इट रिप्लेसेस द करंट प्रोसेस विद अनदर प्रोसेस जो हमने उसको बोली करने के लिए। प्रीटी सिंपल। अभी exec v और exec vp समझा ही होगा। मानकर एक और बार बोलेगा क्या प्लीज? किसका? LP। exec lp में, अभी exec l में हम पाथ पूरा दे रहे हैं,
हाँ एब्सोल्यूट पाथ दे रहे हैं उसका. ठीक है. एग्जैक्ट एल पी में पी इज फॉर पाथ एंड में. हम्म. सो सिस्टम का जो पाथ वेरिएबल है हम्म. तेरे को दिखना डायरेक्टली दिखाता. हाँ एको वाला देखा था मैंने. रुक, तेरे को डायरेक्टली दिखाता. देयर समवेयर बिन अभी इधर जो ये तेरे को दिख रहे हैं ना कोलन के बाद वाले दूसरे कोलन तक. हाँ दिस इज लाइक अ पाथ जो इधर है यूएसआर बिन. सो वो इनहेरिट करता है उसको सिस्टम से इनहेरिट करता है. सो इफ आई अच्छा. टाइप पीएस अगर सिस्टम में ऐसा कमांड है पीएस करके तो तुझे उसका एब्सोल्यूट पाथ देना नहीं पड़ेगा. ओके सो वही है. समझ गया. That's it. और एग्जैक्ट एल जब तुझे एल आएगा ना एग्जैक्ट एल हम्म. तो पी या कुछ देखने का नहीं. वी हैव टू डिक्लेयर एवरी आर्गुमेंट अलग से उसका पॉइंटर देके. ठीक है. ठीक है. अभी एग्जैक्ट वी और एग्जैक्ट वीपी वही सेम ही है. पाथ और नॉट पाथ. आई एम नॉट गोना डू नॉट पाथ वाला सेम ही आता है. अभी अगर वी जब आता है ना तो वी हैव टू पास द आर्गुमेंट एज अ वेरिएबल. सो लेट्स से कि मैंने प्रोसेस नेम को डिक्लेयर किया एग्जैक्ट एल. देन आई हैव टू ये कंपलसरी पार्ट है. आई हैव टू क्रिएट एन आर्गुमेंट स्ट्रिंग. Frozen? दिख रहा है सबको या फ्रोजन? हाँ, okay, No, no. it's gone. It's come. It's fine. दिख रहा है. डिफरेंस बिटवीन एग्जैक्ट एलपी एंड एग्जैक्ट वीपी इज एलपी में हम सेपरेटली डिक्लेयर करते हैं. वीपी में हम उसको एक काइंड ऑफ क्या बोलते हैं उसको एक आर्गुमेंट आर्ग से पास करते हैं. सो वी Path and away. या एंड देन एग्जैक्ट वीपी को जब तू कॉल करेगा प्रोसेस नेम डालने का एंड देन पास द एंटायर स्ट्रिंग. सो व्हाट आई हैव डन इज कि एग्जैक्ट एल को ये वाला है दिस सो अभी एग्जैक्ट एल को रन किया. सो एग्जैक्ट इधर दिख रहा है ऑफ कोर्स. सो अभी जब ये एग्जैक्ट एल को रन करेगा देन ये सब एग्जीक्यूट होगा एंड देन उसके बाद एग्जैक्ट एल में जो प्रोसेस है पीएस वो एग्जीक्यूट होने वाली है. Okay. वही है. आई मीन नथिंग कुछ करने का नहीं है इसमें सिर्फ रट्टा मारने का है. सो इन शॉर्ट आई विल राइट इट डाउन हियर. अगर एल और एलपी होता है तो इंडिविजुअली डिक्लेयर करना है. आर्गुमेंट देने पड़ते हैं मतलब. एंड देन इफ पी देन पाथ इज इनहेरिटेड ऑटोमेटिकली. अगर वी और वीपी होता है देन it has to be declared as a variable as a pointer string. Okay. and अगर p है तो सेम path is inherited. ठीक है. मतलब ये एग्जैक्ट की फैमिली एग्जीक्यूट ही करते हैं पर उनको एग्जीक्यूट में आर्गुमेंट्स कैसे पास करते हैं उस पर डिपेंड वो है. बस वही वेरी करता है. ठीक. वही है. डन. इतना ही है. या कूल. इफ यू वांट आस्क समथिंग कुछ भी डाउट है फालतू कुछ नहीं. दैट्स कूल. Yeah, that's good. ठीक है. काफी अच्छा था.